So, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. So, again, another business plan, and this business plan is about the business plan on the dairy dreams. So, the 6 members are in this group, and they want to start a dairy business. So, different products they have brought here, and for the test marketing. So now the product include desi ghee, butter, cheese, yogurt. So all the products which are based on the milking. So I think that's a wonderful business plan. So without wasting the time, I would like to invite Mohsen Ali Bhela to start the formal introduction of the group member because he is a group leader. Name of Allah, the most beneficent, the most merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose peace is eternal, and whose love is life for us. A very warm welcome to all of you present here. My name is Mohsen Ali, student of BBA final year, specialization in finance at Shah Abdul Latif University, Khairpur. Today we are going to discuss about our business plan, Dairy Dreams. First of all, I am thankful to our supervisor, Professor Sir Dr. Rahim Baksh Sumro Sahab, who gave us that opportunity to represent our business plan. Ask him. So here is our business plan, Dairy Dreams. First of all, let me introduce our team members. Firstly, this is me, Mohsen Ali, the founder and CEO of this business, Dairy Dreams. Secondly, we have Liaquat Ali, the HR expert of our business. Then we have Bilawal Khan, the marketing manager of our firm. Then we have Syed Shoaib Ali Shah, the operational manager of our business. Abdul Bari, the inventory manager of our firm. And lastly, we have our finance expert, Abdul Khalik Solangi. Thank you for your cooperation. You may have your seats now. Thank you. These are our table of contacts. We will be discussing about our firm, mission, vision, products, services, competitive analysis, SWOT analysis, future plans, financial projections, and lastly the conclusion. Hello everyone, it's me Abdul Bari, and I am going to present our business plan on the dairy farms. So I want to tell you about the dairy farms. So dairy farms is an agricultural farms operation, and we can डेयरी फार्म जो है वो हमारा जो एक प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं वो हमारा जो है वो मिल्क है, उसके साथ जो हमारा अदर प्रोडक्ट्स हैं वो है हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ एंड कर्ड जो हम वो भी सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन ये इनिशियली बिज़नेस स्टार्ट किया है वो खैरपुर एरिया में स्टार्ट किया गया है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जो मिल्क है और उसके साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं मिल्क में से ही वो है बटर, चीज़ कर जो हम वो भी कस्टमर को ही प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा मेन मिशन ये है कि जो हमारे एरिया खैरपुर को अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करेंगे टू द होटल्स वालों को भी हम मिल्क देंगे। उसके बाद हम जो होम्स वाले हैं जहाँ रेगुलर जो भी कस्टमर्स हैं उसको भी जो है हम अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हाई क्वालिटी में प्रोडक्ट हो और उसके बाद में जो है ना कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहें। सो नंबर सेकंड पे जो है विजन ये है कि जो हमारा जो कस्टमर से हमारा जो प्रोडक्ट वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और उसके बाद में जो है तो जो हमारा प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके बाद में जो मिल्क है वो हाई क्वालिटी का जो हम प्रोवाइड करें टू द कस्टमर के, और वो जो उसके बाद में जो है प्योर एंड सेफली एंड प्रोडक्ट जो है वो हम कस्टमर तक पहुंचाएं। उसके बाद में जो है जो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का मिल्क एंड अल्टरनेटिव डेयरी प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं हमें मिल्क में से, और उसके बाद में जो है तो हमें जो इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल तक कैसे जाएंगे। जो हम हमारे तो पहले तो ये जो हम सस्टेनेबल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, उसके बाद में जो है प्रोडक्ट हम सेल करें टू द कस्टमर तक। सो फर्दर आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर सैयद सोहेल।
This is Shoaib Ali Shah as working as an operation manager. We and our team welcome you to the world of purity. Basically, the dairy dreams, we come as a concept of dairy dreams. That dairy can also dream. Like हमने सोचा होगा जब डेयरीज कैसे ड्रीम कर सकते हैं. डेयरीज को ये ड्रीम आ सकता है कि काश हमें अच्छा फूड मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले और अच्छा हमें जो है घूमे फिरें, वो उस हिसाब से जो डेयरी कैन आल्सो ड्रीम. अगर उसको अच्छा फूड मिलेगा, अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो हमें प्रोडक्ट जो है वो अच्छे खासे लाइक मिल्क और जो भी है हमारे वो प्योरिटी बेसिस पे देंगे. सो द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वी ऑफर आर वाइट बटर जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. देन देसी घी, ये भी हम वो प्योरिटी लेवल पे 100% प्योर है जो हमारे पास ये प्रोडक्ट में हम अवेलेबल है. लाइक दिस इज़ द पैकिंग दैट वी ऑफर. एंड वी हैव कर्ड, जो दही है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी इस प्रोडक्ट में है. लाइक सी द पैकिंग, इट्स 100% प्योर. एंड देन वी हैव मिल्क जो है हमारी वो पैकिंग है इस हिसाब से है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं. लाइक आम जो मिल्क होता है वो शॉपर्स में होता है, लाइक हमें वो अच्छा खासा नहीं होता. इसमें हम जो है वो हम अच्छा प्रोवाइड करते हैं. देन वी हैव लस्सी भी हमारे पास इस पैकिंग में है. इसमें लस्सी में हम जो है 3 वैरायटी अवेलेबल हम प्रोवाइड करते हैं. उसमें जो है हमारी जो खाली सॉल्ट वाली लस्सी होती है, फिर हमारे पास शुगर वाली होती है. देन है हमारे पास एक स्पेशल लस्सी है जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं. लाइक उसमें ये हम वो शहद वगैरह डालते हैं, लाइक वो हमारा स्पेशल क्वालिटी है. देन वी ऑफर द चीज़ सर्विसेज वी ऑफर. इसमें हम डेयरी ड्रीम्स जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो वो है कि हम डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जब भी आप ऑर्डर करेंगे हम आपको विद इन इमीडिएट टाइम हम आपको वो डिलीवर कर देंगे. वो हमारे जो भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से कोई भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. देन वी हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हमारे जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं. लाइक हम जिस भी चौक पे जाएंगे, चौराहे पे जाएंगे, हमारा वो जो है लोकल कॉम्पिटिटर्स हम शॉप वगैरह सारे आपको मिलेंगे. बट जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं फकीर कैटल, देसी पैराडाइज, ये ETC हाजी डेयरी फार्म, ये पर इनमें ये है कि ये हमें जो है होम डिलीवरी नहीं करते, जो हम इनसे अलग है. देन वी हैव इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स. इंटरनेशनल इन अ सेंस दैट हम जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल बेसिस पे भी लॉन्च कर रहे हैं. लाइक हम लोकली नहीं है, लाइक हम ब्रांडिंग करेंगे, ये हमारी ब्रांडिंग है, इसको अभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं. लाइक नेस्ले है, वो भी हमारा जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर है. एंड अनमोल इंडिया का है, जर्मन का है. एंड देन वी हैव सॉर्ट एनालिसिस. फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर लियाकत टू डिफाइन दैट. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Liaquat Ali. Today my presentation topic is SWOT analysis. SWOT analysis में जो हमारा डेयरी ड्रीम फार्म है उसकी कुछ जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हैं वो, ताकि जो हमारा फार्म है उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकें. फर्स्ट हम हमने हमारी बिज़नेस है उसकी हमें अगर स्ट्रेंथ देखें तो क्वालिटी प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की खासियत ये है तो वो एक तो प्योर है, उसमें किसी चीज़ की भी मिलावट नहीं है. देन जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में ये है कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, जैसे वाइट बटर है, मिल्क है, लस्सी है, चीज़ है और देन मिल्क है, प्योर मिल्क है. उसके बाद जो है हेल्थ एंड वेलनेस फोकस है. हेल्थ एंड वेलनेस फोकस में जो हमारा फोकस है वो हेल्दी प्रोडक्ट्स पर है, ताकि हम अपने जो कस्टमर्स के हेल्थ को बेनिफिट दे सकें
पार्टनरशिप एंड कोलाबोरेशन जो हमारी एक पार्टनरशिप है दूसरी बिजनेस से है, एंड कोलाबोरेशन है पैकेजिंग कंपनीज़ के साथ है। एडाप्टिंग एंड इनोवेशन में जैसे कि हमको जब कोई न्यू चीज़ नज़र आती है हम उसको एडाप्ट करते हैं, फिर उसको इनोवेट करके हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। सीजनल ऑफरिंग जैसे कि देसी घी है, वाइट बटर है, ये हमारी क्या है सीजनल ऑफ़र है। इसकी जो है विंटर में जो है रैंक हाई हो जाती है और इससे हमें जो है सेल्स की भी जो है डिमांड बहुत बढ़ जाती है। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट शॉप पर अवेलेबल होते हैं ताकि जो है कस्टमर इजीली अवेल कर सके। और हमारी जो बिज़नेस की जो है वीकनेसेस हैं वो ये है कि लेक ऑफ अवेयरनेस फॉर क्लीन एंड प्योर प्रोडक्ट। मतलब जो हमने एक खालिस प्रोडक्ट बनाया है उसकी इतनी अभी तक अवेयरनेस नहीं हुई है, तो ये हमारी एक वीकनेस है। सीजनल फ्लक्चुएशन एंड मिल्क प्रोडक्शन, ताकि जो हम सीजनल मतलब जो हमारी डिमांड है प्रोडक्ट की वो सीज़न विंटर में बढ़ जाती है, गर्मियों में कभी कभी जो है कम हो जाती है, तो इसमें जो सेल्स में है ना वो फ्लक्चुएशन आ जाता है। उसके बाद है लिमिटेड मार्केटिंग एंड ब्रांड। हमारी जो मार्केटिंग है वो लिमिटेड है क्योंकि हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो लोकल एरिया से किया हुआ है, और हमारी जो पैकेजिंग है वो भी सिंपल है, पेरिशेबल नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। एक तो ये भी हमारी मतलब बहुत बड़ी वीकनेस है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी बिज़नेस की। अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेल्स की वजह से हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन जो है सेल कर सकते हैं। कोलाब्रेशन रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी, डिफरेंट जो है रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी शॉप से हमारा कोलाब्रेशंस है। और देन इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन क्रिएट, जो हम अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन तक। कोलाब्रेशंस विद हेल्थ एंड फिटनेस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्मार्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास बेहतर हैं। उसके बाद जो है थ्रेड्स, कॉम्पिटिटर प्रेशर में जो थ्रेड ये है कि जो हमारे पास जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत है, और ये भी मतलब ताकि जो वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उनका भी प्रेशर होता है कि वो कॉम्पीट ना कर जाएं। देन इकोनॉमिक डाउनटर्न में ये होता है कि कभी कभी हमारी जो है इकोनॉमी वो स्लो हो जाती है, तो ताकि जो कस्टमर्स का जो है वो परचेजिंग पावर कम हो जाता है, देन वो जो हमारे प्रोडक्ट जो है परचेज नहीं कर पाते। उसके बाद है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में ये होता है कि कभी कभी जो है हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो जो हम चीज़ डिलीवरी करते हैं वो उन कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती, तो ये भी एक थ्रेट है। एनवायरमेंटल कंसर्न, कभी इन्वायरमेंट चेंज होता है मौसम के हिसाब से, तो ये भी एक मतलब थ्रेट है। प्राइस वार्स में ये होता है कि कोई कंप्यूटर के कंपैरिजन जो उसकी प्राइस क्या है और हमारी प्राइस क्या है, ये भी मतलब थ्रेट होता है। नेगेटिविटी पब्लिसिटी में ये होता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी की जाए कि ये प्रोडक्ट गलत है। उसके बाद लेबर शॉर्टेज भी ये भी एक थ्रेट है। डिज़ास्टर आ जाता है कभी कभी गांव में और मिल्क की शॉर्टेज हो जाती है, तो ये भी एक थ्रेट है। देन further I call Bilawal Khan. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilawal Khan. So today I am here to share with you marketing strategy of our business plan as Dairy Dreams. So जैसा कि मेरे ग्रुप मेंबर्स ने आपको बताया, उसका एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने जो अपनी बिज़नेस प्लान की बनाई है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं वो किसी भी बिज़नेस के लिए एक कंधे की मिसल होती हैं। मतलब किसी भी बिज़नेस प्लान को मतलब आपको अच्छी तरह चलाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है। तो हमने ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें आप प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पीपल और प्लेस
जो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं या आपके इंड यूज़र्स जो होते हैं उसको आप अवेयरनेस देते हैं कि आप किस तरह जो है हमारा जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं जो जैसा कि मिल्क है, कर्ड है या बटर है, तो सिर्फ क्योंकि आपकी जो दूसरे भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो भी अपना बिज़नेस चलाते हैं, तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ज़रिए उनको हम कन्विंस करते हैं, अवेयर करते हैं कि हमारा भी प्रोडक्ट इधर मतलब मार्केट में है तो वो आप ख़रीद करें। तो सबसे पहले हमने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो हमारा जो बिज़नेस है वो आपको मतलब एक फ़्रेश और हाई क्वालिटी का मिल्क है या मिल्क सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जैसे आप इधर देख रहे हैं जैसे कि लस्सी है, कर्ड है या बटर है, तो आपको अच्छी एक क्वालिटी की मतलब प्रोवाइड कर रहा है और एक फ़्रेश एंड नंबर सेकंड इज़ तो आवर कमिटमेंट इज़ एक्सलेंट बिगिंस विथ हैप्पी वेल केयर्ड काउज एंड एक्सटेंड टू एवरी बोटल्स वी डिलीवर टू योर डोर स्टेप। तो हम जो अपना प्रोडक्ट है वो आपको मतलब एक अच्छे तरीके से पैकिंग करके, क्योंकि दूसरे जो लोकल हमारे जो मिल्क के जो बिजनेसमैन होते हैं तो वो मतलब ऐसे ही किसी किराने की शॉप पे जो मिल्क देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको एक अच्छे तरीके से बोतल में पैक होकर आपको डोर स्टेप तक आप अगर ऑर्डर करेंगे तो वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। एंड देन वी बिलीव इन सिंपलिसिटी ऑफ गुड्स एंड होलसम न्यूट्रिशन। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें किसी किस्म का मिलावट मतलब प्रोसेस्ड ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं है, एक सिंपल फ्रेश और हाई क्वालिटी का है। और इसमें क्योंकि जितना मतलब प्रोडक्ट जो मिल्क का है उतना मतलब वो होगा सिंपल होगा और उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिल्क में जैसे न्यूट्रिशन तो होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन होते हैं तो वो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम की वजह से मतलब आप फैट सॉल्युबल, तो हमने जितना मतलब इसको सिंपल किया है इसलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो। और देन प्राइस की जो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी रखी है। तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि मतलब एक हमारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो मतलब जैसे हम अगर बटर की बात करें तो 1 किलो नहीं ले सकते, अगर आधा किलो लेंगे तो उसको भी हम मतलब ऐसा हम आधा किलो प्रोवाइड करेंगे। अगर आधा किलो से भी कम लेना चाहते हैं तो मतलब हमने ऐसे प्राइसिंग पॉलिसी रखी है। और दूसरा है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन एंड जियोग्राफिक फैक्टर। मतलब हमने जो अपनी प्राइसिंग में मतलब इन्फ्लेशन की वजह से अगर हमारी जो इनपुट कास्ट है जो वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम अपनी प्राइसिंग को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। और जियोग्राफिकल फैक्टर मतलब जो हमें करीब पड़ते हैं अगर कोई भी कस्टमर, तो उसके हिसाब से हम बटर वगैरह या जैसे घी हो गया तो उसकी प्राइस भी हम उनको थोड़ा मतलब डिस्काउंट दे सकते हैं। और उसके बाद है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मतलब आप अगर हमारा जो प्रोडक्ट है जो डेयरी ड्रीम्स का जो प्रोडक्ट है अगर वो आप ख़रीद करेंगे तो आपको मतलब ऐसा महसूस होगा कि हमने जितने पैसे भरे हैं तो उतना ही हमें वैल्यू मिला है। और दूसरा है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हमने जो प्राइसिंग रखी है कि मतलब हमने मार्केट को देखते हुए जो सारी मतलब हमारी जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव है, मतलब नहीं ज़्यादा है नहीं कम है। और उसके बाद है प्रमोशनल प्राइसिंग। मतलब प्रमोशनल प्राइसिंग भी हमने सेट की है कि अगर हमारे कस्टमर अपने जो जैसे ही शुरुआत में हम उन अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो वो भी हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जो प्राइसिंग है वो सेट की हुई है। उसके बाद आ जाता है प्रमोशन।
तो हम अपने जो डेयरी ड्रीम्स के जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रमोशन के हवाले से हम सोशल मीडिया, जैसे कि आजकल तो फेसबुक का मतलब ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर मतलब 5 आदमी से मतलब 4 आदमियों के पास तो ज़रूर फेसबुक वगैरह होगा। तो हमने जो प्रमोशन के हिसाब से सोशल मीडिया को अपना एक टूल बनाया हुआ है और उस पर हम जो हमारे फार्म्स की स्टोरीज़ हैं वो हम शेयर करेंगे विथ कूल पिक्चर एंड इंफॉर्मेशन। एंड लोकल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जैसा कि लोकली मतलब यहाँ हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जैसा कि हमारा जो इन्फ्लुएंसर हो गया कि वो एक वीसी साहब हो गया, हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो उनको टेस्ट करवा के फिर उनको रिव्यूज़ लेकर वो भी हम मतलब सोशल मीडिया के थ्रू उनको जो रिव्यूज़ हैं वो हम अब शेयर करेंगे। और प्लस वी हैव स्पेशल डील्स एंड रिवार्ड टू से थैंक्स फॉर चूजिंग। और हमारे पास मतलब स्पेशल डील्स भी होंगे, जैसा कि मतलब ईद का दिन आ जाता है या ऐसा कोई मतलब ऐसे, तो उन हिसाब से भी हमने जो अपने डील्स वगैरह तो रखी हुई हैं प्रमोशन के साथ। उसके बाद आ जाता है प्लेस जो हमने अपने बिज़नेस डेयरी ड्रीम्स के लिए सिलेक्ट किया है वो है खैरपुर सिटी, जिसमें बहुत सारे मतलब शहर आ जाते हैं और विलेजेस हैं और लोकल मार्केट्स आपने खैरपुर की देखी हुई है, बहुत अच्छी है। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हम प्रोवाइड करेंगे अपनी बिज़नेस का जो है इसमें। उसके बाद है पीपल जिस तरह हमने अपने टारगेट किए हैं तो उसमें फैमिलीज़ आ जाती हैं, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं और हेल्थ कॉन्शियस लोग आ जाते हैं, जैसा कि वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल करते हैं। तो उनके लिए भी जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत मतलब क्वालिटी वाला और फ्रेश जो है हम प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि किराना शॉप्स हो गए, तो उनको भी हम जो अपना प्रोडक्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो कैफ़े या रेस्टोरेंट, उनको भी जो हम अपना जो मिल्क है या जैसे उनको कर्ड की या लस्सी की मतलब ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे। और जो फिटनेस के हवाले से जो जिम वगैरह करते हैं, तो क्योंकि मिल्क या उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है तो उसमें फैट सॉल्युबल मतलब उसमें होता है, तो ये हम फिटनेस और इवेंट कैंटर्स होते हैं उनको भी हमने ये टारगेट किया हुआ है। फर्दर फ्यूचर प्लान विल बी डिस्कस्ड बाय मोहसिन बेलार। सो अब आ जाता है हमारे डेयरी ड्रीम्स बिजनेस प्लान के फ्यूचर प्लान्स का। सो बेसिकली हमारा जो फ्यूचर प्लान्स है वो दो हैं, एक तो है एक्सपांडिंग आवर प्रोडक्ट लाइन एंड दूसरा द ग्लोबल एक्सपांशन ऑफ आवर फर्म। प्रोडक्ट लाइन में एक्सपांशन कैसे है कि बेसिकली अगर आप देख सकते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ वाइट बटर ही मतलब के प्रोवाइड फ़िलहाल कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो येलो बटर भी होता है मार्केट में, अभी उस पर हमारा काम चल रहा है। तो फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि हम येलो बटर प्रोवाइड करें। उसके अलावा अभी हमारा काम चल रहा है चीज़ पर, तो उस पर भी काम चल रहा है और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। और मिल्क के अलावा हम सोच रहे हैं कि और भी कुछ ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड करें, जैसे कि फ्रेश जूसेस हो गए या और भी कुछ। एंड लास्टली जैसे कि शुएब शाह ने बताया कि फ़िलहाल हमारा जो काम चल रहा है वो नमकीन लस्सी पर चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम ये भी ट्राई करेंगे कि हम शुगर बेस्ड लस्सी प्रोवाइड करें। देन आवर नेक्स्ट फ्यूचर प्लान इज़ द ग्लोबल एक्सपांशन। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस हो वो इंटरनेशनली भी हम उसको रन कराएं। अब इंटरनेशनली बिज़नेस रन कराने में बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड का, क्या है हमारे प्रोडक्ट की इंटरनेशनली अब्रॉड डिमांड है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंटरनेशनली मार्केट रिसर्च करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की इंटरनेशनली डिमांड है या नहीं है। जो सेकंड फैक्टर इसमें हमारा इम्पेक्ट करता है वो होता है लीगल गवर्नमेंट इश्यूज़। हमारा जो प्रोडक्ट है
वो इंटरनेशनली गवर्नमेंट अलो करती है या नहीं, अगर करती है तो हम उसको एक्सपांड करेंगे, अगर नहीं देन वी विल ड्रॉप द आइडिया। थर्डली, हम जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ की एक अलग ही कल्चर है और इंटरनेशनली एक अलग कल्चर होगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ की मार्केट के कल्चर को भी स्टडी करेंगे, जिससे हम फ़कत अपने प्रोडक्ट्स में वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे यहाँ पर वो उनके कल्चर के लिए सूटेबल होगा। एंड उसके अलावा हम प्राइसिंग पर भी फोकस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान में डिफाइन करेंगे। The last but not the least topic of our presentation is the financial plan. So I would like to call Mr. Khalik to discuss the financial plan. I start with the name of Allah. My name is Abdul Khalik, having roll number BBA 20004, and I am finance expert in my business. So I am starting my business with the financial plan. Financial plan. So I am starting my financial plan with the executive summary. So we are investing 48 lakhs, means 4.8 million rupees in dairy farm, and this includes dairy equipment, transportation license and conducting advertising and other costs. So सबसे पहले हमारी इनिशियल स्टार्टअप कास्ट है। इनिशियल स्टार्टअप कास्ट में सबसे पहले परचेज ऑफ लाइव स्टॉक है, जिसमें हमारी 10 काउज हैं और 10 बफेलोज़ हैं, जिसमें एक काउ है वो हमें 2 लाख में पड़ रही है, तो 10 हमें 20 लाख में पड़ेंगी, मतलब 2 मिलियन, और बफेलोज़ भी हमें 2 मिलियन में पड़ेंगे। उसके बाद डेयरी इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें परचेज एंड इंस्टॉलेशन है, जिसमें डीप फ्रीज़र है और अदर इक्विपमेंट्स हैं जो फार्म में यूज़ होंगे और शॉप में भी यूज़ होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें परचेज ऑफ यूज्ड व्हीकल्स, जो बाइक्स होंगी 25,000 में हमें मिलेंगी यूज्ड, तो वो हमने 4 परचेज़ किए 1 लाख में। उसके बाद उनका फ्यूल एक्सपेंस है वो 36,000 है, और लाइसेंस फ़ी जो रजिस्ट्रेशन होगी फार्म की वो 25,000 होगी, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो होगी हमारी 10,000 होगी। तो जो हमारा इनिशियल स्टार्टअप कास्ट होगा 42,71,000 रुपीज़ होंगे, मतलब 4.271 मिलियन रुपीज़। उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो मंथली हैं, जिसमें सबसे पहले फीड एंड न्यूट्रिशन है। फीड एंड न्यूट्रिशन जो लाइव स्टॉक क्योंकि फूड होगा वो 3,60,000 का होगा, और उसके अलावा लेबर कास्ट है, जनरल मैनेजर जो हमारा फार्म का भी और शॉप का भी जनरल मैनेजर होगा, उसकी जो सैलरी होगी 25,000 होगी। उसके बाद हमारे पास 4 वर्कर्स हैं, 4 वर्कर्स और 4 डिलीवरी बॉयज़ हैं, तो ये 8 हो गए। इनकी सैलरी 10,000 पर वर्कर है, तो ये 80,000 हो गए, 80,000। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स, जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटीज़ हैं, वो 5,000 रुपीज़ है। उसके बाद हमारे रेंट एक्सपेंसेस हैं, फार्म का जो रेंट है 30,000 है, और जो शॉप का रेंट है 20,000 है, तो रेंट एक्सपेंस ये 50,000 हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस भी हमारा जो इक्विपमेंट कोई टूट जाता है, या उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्म का है, उसमें हम 5,000 रखिए। और पैकेजिंग कास्ट जो होगी बोटल्स और बॉक्सेस, बोटल्स हमारी ये जो बोटल्स हैं पर मंथ हमारी 2700 बोटल्स बिकेंगी, तो हमारे बल्क अमाउंट में जो ये बन रही है 10 रुपीज़ में एक बोतल बन रही है, तो उनके 27,000 बनेगी। और उसके अलावा बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस केजी के हिसाब से बॉक्स दूसरा है, वो हम 360 kg बटर सेल करेंगे एक मंथ में, तो 3,600 उसकी कॉस्ट होगी। तो टोटल मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 5,55,600 रुपीज़ है, मतलब 0.5556 मिलियन रुपीज़। उसके बाद प्रोजेक्टेड इनकम है डेली और मंथली। प्रोजेक्टेड इनकम डेली, इसमें प्रोडक्शन है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन पर डे वो कैसी होगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक काऊ जो है एक टाइम पर 4 kg दे रही है, तो 2 टाइम्स में वो 8 kg देगी, और हमारे पास 10 काउज हैं, तो वो 80 kg हो गया। और उसके अलावा बफेलोज से हमें प्रोड्यूस करवाए 100 kg, तो वो 180 kg पर डे हमारा प्रोडक्शन होगी मिल्क की। तो उसके अलावा मिल्क सेल से 90 kg 50% हम प्योर मिल्क सेल करेंगे, जिसकी जो 200 प्राइस रखिए, 90 kg मल्टीप्लाई बाय 200 प्राइस, तो ये 18,000 होगी हमारी जो सेल्स होगी 90 kg मिल्क की पर डे। उसके अलावा 90 kg जो रेस्ट हमारा मिल्क होगा प्योर मिल्क, उसमें से 12 kg हमारा प्योर बटर जो वाइट बटर पड़ा है,
ये 12 kg हम पर डे के हिसाब से बनाएंगे 90 kg में से। और जैसे कि बटर एक्सपेंसिव है तो इसकी प्राइस है 3000 रुपीज़। 12 kg को मल्टीप्लाई करें 3000 प्राइस से तो 36,000 हमारी डेली की सेल्स होगी बटर की। तो टोटल जो डेली प्रोजेक्टेड इनकम होगी वो 54,000 रुपीज़ होगी। और इसके अलावा एस्टिमेटेड जो ये है 180 kg को हम 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मंथली आ जाएगा 5,400 kg मिल्क होगा मंथली जो होगा। उसके अलावा जो 50% वैसे ही है, 50% तो हम यूज़ करेंगे सेल करने के लिए। 50% में से 360 kg बटर निकालेंगे जिसकी जो मिल्क की सेल्स होगी मंथली 5,40,000 होगी। और इसके अलावा बटर की जो होगी 360 kg की प्राइस वो 10,80,000 होगी। तो हमारी जो मंथली प्रोजेक्टेड इनकम होगी 16,20,000। उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट है हमारी बिज़नेस की जिसमें रेवेन्यूज़ है। रेवेन्यू मिल्क सेल्स में से 5,40,000 और उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो ये हैं बटर है स्पेशली, तो बटर की जो सेल्स होगी 360 kg की वो 10,80,000 होगी। तो टोटल रेवेन्यू होगा 16,20,000। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है हमारे जैसे प्रीवियसली मैंने डिस्क्राइब किए, फीड एंड न्यूट्रिशन 3,60,000, लेबर कास्ट टोटल जो होती वो 1,05,000, उसके अलावा यूटिलिटी 5,000, रेंट एक्सपेंसेस 50,000 और मेंटेनेंस एंड रिपेयर 5,000 और उसके अलावा पैकेजिंग कास्ट 30,600। तो टोटल मंथली एक्सपेंसेस होंगे 5,55,600। तो हम नेट इनकम जो नेट प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो रेवेन्यू हमारा टोटल जो है 16,20,000 है। तो उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 5,55,600। तो हमारा जो नेट इनकम जो नेट प्रॉफिट होगा वो 10,64,400। तो पेबैक पीरियड हमने 5 मंथ्स लिखा है क्योंकि 5 मंथ्स में हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 48 लाख से उससे ज़्यादा भी हम रिटर्न कर पाएंगे, जिसमें 5.322 मिलियन रुपीज़ मतलब 53,22,000। उसके बाद 5 मंथ्स के बाद जो हमने प्रॉफिट रखा है वो पर इन्वेस्टर प्रॉफिट रखा है 1,77,400, जो कि हमने यहाँ पे जो नेट इनकम है इसमें से प्रॉफिट निकाला है पर इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर था हम 6 मेंबर्स हैं तो इनके जो 8 लाख हमने इन्वेस्ट किए। उसके उसके बाद NPV है हमारा, मंथली इनकम जो रेवेन्यू है वो 16,20,000 है। मंथली एक्सपेंसेस जो हैं 5,55,600 है और जो हमारा टाइम है 5 मंथ्स का है। तो सबसे पहले कैश फ्लो फाइंड करेंगे। कैश फ्लो हमने रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस 10,64,400 और जिसमें से हम एक तो R है डिस्काउंटेड रेट है 5 मंथ्स के लिए, वो हमने अज्यूम किया है 8%। तो हमारा जो ये कैलकुलेशन होगी NPV हमारा 42,49,840 रुपीज़ होंगे 5 मंथ्स के लिए। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट मंथली प्रॉफिट है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 22.17, ये हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई, सो आई एम Asha, now it's time to show the products, and these are not for only showing, these are for selling purposes. This is 1 liter pure milk. अगर आप में से कोई इसमें से लेना चाहे तो हम 200 में ये कर सकते हैं। वैसे कि जो इसकी जो प्राइस है हमारे फर्म में वो 250 है प्योर मिल्क के, और इसके आप पैकेजिंग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वहाँ परचेज किया, सो दिस इज़ सोल्ड। देन वी है प्योर लस्सी। इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है। अगर आप में से कोई लेना चाहेगा इस वक्त तो आपके लिए ऑफ़र ये हम आपको 100 रुपीज़ में दे सकते हैं विद दिस ब्रिलियंट पैकिंग। देन वी है बटर। इसका जो एक पीस है वो 200 रुपीज़ का है, लेकिन अगर आप ये चारों पीस लेते हैं तो ये हम आपको 700 रुपीज़ में दे सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव कर्ड। ये जो एक पीस है कर्ड का वो 50 रुपीज़ का है, सो यू कैन बाय। दैट्स ऑल, थैंक यू।
मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आप मतलब मिल्क सेल कर रहे हैं वो 200 रुपीज़ में कर रहे हैं और जो है ना मार्केट में हमें मिल रहा है 170 और 180 रुपीज़ में, और जो आप मतलब जो है ना लस्सी सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप 150 की और मार्केट में मिल रहे हैं 120 की, तो मतलब जो है ना मार्केट से जो है ना आपका जो है ना प्राइस हाई क्यों है? अच्छा, सबसे पहले लस्सी का बता दूं, जो लस्सी आपको कितने में बताई मिल रही है? 120 में। 120 में। ये प्योर लस्सी है, इससे आप और बना सकते हैं। मतलब वो जो होती है मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर से बना कर देते हैं, इससे आप तकरीबन 2 लीटर्स तक बना भी सकते हैं। ये प्योर है, इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है। और मिल्क? और आपने बताया मिल्क का, तो बेसिकली जहाँ से हम ये लाए हैं ना, हमारा जो एक डेयरी फार्म है वहाँ से लाए हैं, वहाँ पर प्योर मिल्क 250 का मिलता है विद पैकेजिंग। अगर आप इसकी पैकेजिंग देखें, पैकेजिंग मतलब देख सकते हैं आप कितनी बेहतर है, इसी हिसाब से इसकी जो कास्ट बढ़ी है। जैसे कि कॉफ़ी तो 30 रुपीज़ में मिल जाती है, स्टारबक्स की इतनी महंगी क्यों है? दैट वाज द रीज़न। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir, for giving me such a great chance to ask the questions from this group. So I have a question that खैरपुर जो है पहले ही ऑलरेडी रूरल एरिया है, तो हाउ डू यू बिलीव दैट आपका बिज़नेस चलेगा? क्योंकि यहाँ खैरपुर एक सिटी है, उसके बाद सराउंडिंग में बहुत सारे विलेजेस हैं, वो खुद दूध बनाते हैं, बटर बनाते हैं, और ये जो आप लस्सी वगैरह कह रहे हैं बनाते हैं, तो आपको मतलब क्या लग रहा है कि आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इन कॉम्पिटिटर्स में से कभी किसी का नाम सुना है खैरपुर सिटी में? हाँ जी बिल्कुल। कौन सा सुना है? ज़मींदार मिल्क शॉप और हाजी भी सुना है, और बस यही दोनों सुना। मतलब ये जो है पॉपुलर हैं इस हिसाब से। अब ये जो सारे हैं ना, वो सेम ही प्रोडक्ट मतलब कि सेम ही स्ट्रेटजी से चल रहे हैं। जो शॉपर्स में होता है वो मिल्क देते हैं, ये वो सब होता है। अब हमने आपको अपनी स्ट्रेटजीज बताई कि हम जो मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक स्पेशल पैकिंग में प्रोवाइड करते हैं विद लोगो। आप इनमें से किसी के पास भी गए होंगे, वहाँ पर उसका कोई नाम का लोगो वगैरह है? नहीं है। तो यही एक मतलब के प्लस पॉइंट है हमारी। और इसके अलावा हम ना होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट स्लाइड में कॉन्टैक्ट हमारा था नहीं, मिल्क बटर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी होम डिलीवरी करते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे पैकेज मतलब के हमारे बिज़नेस का। जी, जैसे आपने कहा कि आप बिल्कुल रियायती दे रहे हैं, उसके बाद अच्छी पैकिंग में दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप फिर कॉस्ट को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि वो जो ज़्यादा पैसे में देते हैं, पैकेजिंग भी कम देते हैं, आप अच्छी पैकिंग में बिल्कुल कम पैसे में देते हो, तो क्या लग रहा है कि आप कॉस्ट को कैसे मैनेज करोगे? एक्चुअली दीज आर एस्टीमेट्स, हम इस पर काम कर रहे हैं और एस्टीमेट्स के मुताबिक कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। थैंक यू। अभी आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स ने किस तरह डेयरी मिल्क में यानी डेयरी क्वीन जो उनके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक लस्सी है और एक मिल्क है, तो उन पे एक अच्छा बिजनेस प्लान दिया है। तो यहाँ पे अगर सच्ची बात पूछें कि यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में अच्छा दूध मिलना बहुत बड़ा मसला है। मैं खुद हम सब दूध को कंज्यूम करते हैं और हम खुद सोचते हैं कि यार कहीं से कोई अच्छा प्योर दूध मिल जाए, चाहे पी के प्राइस कोई भी हो। लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं तो आप 300 भी अगर डिमांड करेंगे तो लोग आपको 300 भी बखुशी दे देंगे, बशर्ते एक प्रोडक्ट उनको अच्छी मिल जाए और वो उसके डोर स्टेप उनको मिल जाए। तो यही आप काम करें। इसका बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वो एक डिमांड है मार्केट में, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि ना फ़कत इससे आप ये 2-3 प्रोडक्ट बना सकते हैं जो अभी इन्होंने दिखाई है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी और इनोवेशन करके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ख़ासतौर पर मैं बात करूँगा चीज़ की। आप देखिए मार्केट में चीज़ की कितनी कीमत है, बहुत ज़्यादा महंगी है पाकिस्तान में चीज़। अगर इस चीज़ पे आप फोकस करें और सिर्फ चीज़ ही बना लें, यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ पे तो एक ग्रुप है इनका, लेकिन ये अलहदा भी इंडिविजुअली भी काम करें अपने अपने इलाकों में तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जो है ना इसका यानी यहाँ से फ़ारिग होकर यही काम करेंगे, क्योंकि आपका काम करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जो आपने कंप्यूटर हमें बताएं। क्योंकि हमने आपको ट्रेन किया है कि मार्केट किस तरह करें, HR को किस तरह मैनेज करें, फाइनेंस को किस तरह मैनेज करें, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को पता है। तो आप एक जो आम जो दूध फरोश है, आप उनके मुकाबले आपका काम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। थोड़ी सी पैकिंग और ज़्यादा अच्छी करें तो इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, ना फ़कत पाकिस्तान में बट पाकिस्तान से बाहर भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक लोग जो है ना वो लूज़ मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द पैक्ड मिल्क। अब पैक मिल्क में जो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं पाकिस्तान में काम करी, हार्डली को इनका जो मार्केट है, जो मार्केट कैप्चर किया हुआ है उन्होंने, वो हार्डली 20% है। अभी तक 80% लोग जो वो लूज़ मिल्क, इस तरह के मिल्क जो है ना वो अनपैक्ड मिल्क
वो प्रेफर भी करते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट इज़ वेटिंग फॉर यू। सो उम्मीद करता हूँ फिर भी कि आप यही कारोबार करेंगे यहाँ से फाइनल करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।